Welcome students. This is our second interactive session on topic reproduction. तो पिछले एपिसोड में पिछले लेक्चर में हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज हमें बात करनी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। देखिए बच्चों, आज बाय एनी हाउ मैनर विल फिनिश दिस चैप्टर। तो पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टॉपिक है वो आज कंप्लीट करना है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। For your kind information, sexual reproduction is also called as amphimixis. Amphi ये वर्ड का यहाँ पे मीनिंग होता है, amphi मतलब both और mixis का मतलब होता है fusion. तो fusion of two or more gametes is the basic condition in sexual reproduction. That's why it is called as amphimixis. तो amphimixis के साथ साथ उसकी definition भी एक बार clear कर लेते हैं. I will suggest you instead of going to definition, मैं ऐसे बोलूँगा कि point wise याद रखो, उससे definition भी form हो जाएगी और you can make your own content on sexual reproduction. तो sexual reproduction में सबसे पहले हमें एक बात जो डिस्कस करनी है वो कौन सी, तो यहाँ पे how many parents are involved. तो parents, how many parents are involved in sexual reproduction? 2 parents are involved. Then what is the production of variation, is the production of individuals which have variations. तो sexual reproduction में जो individuals produce होते थे वो थे clones. Reason था because they were genetically, morphologically very much similar to parents. That's why they were called as clones. तो sexual reproduction में ऐसा नहीं होता है. The individuals which are produced in sexual reproduction, they are not genetically and identically similar. मैं genetically इतना यकीन के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन morphologically they are not that much identical to their parents. वो xerox नहीं होते, वो copy नहीं होते. That's why they are not called as clones. तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट होती है, इम्पोर्टेंट बात होती है. तो वेरिएशंस जो इवोल्यूशन का बेसिस फॉर्म करता है, तो वेरिएशन यहाँ पे जरूरी है. दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ही डिसएडवांटेज जो है वो है दिस इज वेरी स्लो प्रोसेस. दिस इज वेरी स्लो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. तो आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिसे आप जनरेशन टाइम बोलते हो, that time is very less and it needs very small time, very less time to complete. That's why that is the advantage, but here it becomes disadvantage of sexual reproduction. तो जो generation time होता है वो यहाँ पे ज़्यादा होता है, तो ये बन जाता है उसका disadvantage. तो advantage देखा, disadvantage देखा. Now collect all the points and make your own definition of sexual reproduction. It is the method, it is the way of reproduction where 2 parents are involved, fusion of gamete takes place, fertilization takes place, individuals formed are not genetically or morphologically identical to their parents, और सबसे जरूरी बात, variations are created. Such mode of reproduction is called as a sexual reproduction. उसे मैंने पहले शुरुआत में बता दिया था कि sexual reproduction is also called as a amphimixis. Now move to next part. What are the phases involved in sexual reproduction? तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने वाले जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं, तो उसमें लाइफ स्पैन एक जरूरी बात होती है. द लाइफ स्पैन इज समवॉट मोर. दैट्स व्हाई दे आर हैविंग 2 डिफरेंट फेजेस इन देयर लाइफ. एक होती है प्री रिप्रोडक्टिव फेज और दूसरी होती है रिप्रोडक्टिव फेज. तो व्हाट इज प्री रिप्रोडक्टिव फेज? बच्चों, प्री रिप्रोडक्टिव फेज का सिंपल में मीनिंग ऐसा होता है, द ऑर्गेनिज्म सिंस देयर बर्थ टिल देयर प्यूबर्टी, until it becomes sexually or reproductively matured. तो वो जो phase होता है लाइफ का, that is called as a pre-reproductive phase, and here it is named as a juvenile phase in case of animals, and in case of plants it is called as a vegetative phase. तो दूसरी phase कौन सी होती है? Once they are attaining their reproductive maturity, तो उसके बाद जो phase शुरू होती है वो phase को हम बोलते हैं reproductive phase. तो हर एनिमल की लाइफ स्पैन के हिसाब से ये जो फेजेस है इसका ड्यूरेशन अलग अलग होता है. अकॉर्डिंग टू प्लांट ये अलग होता है, अकॉर्डिंग टू एनिमल ये अलग होता है. लेकिन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने वाले जितने भी एनिमल्स है, जितने भी प्लांट्स है, उसमें ये 2 फेजेस आपको डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी. मूव ऑन, आगे बढ़ते. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दूसरा जो पार्ट आता है वो कौन सा होता है? तो बच्चों, अगर आप आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक रेफर करोगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसमें मिलेगी. पेज नंबर है 9 आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का. तो वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पार्ट आपको दिया गया है कि जितने भी एनिमल्स जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं
नाउ इन केस ऑफ दोज एनिमल्स, तो देखो हम अगर कैटेगराइज कर देंगे तो उसमें वी मे स्टार्ट फ्रॉम यूनिसेल्युलर टू मल्टीसेल्युलर। तो यूनिसेल्युलर से लेकर एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक, सॉरी पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन तक जो एनिमल्स होते हैं, यू कैन यू कैन डिवाइड देम इनटू ओविपेरस एंड विविपेरस। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं, पर्टिकुलरली एनिमल्स एक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग, जो अपने बच्चे प्रोड्यूस करते हैं थ्रू द एग्स, and those are called as oviparous. So egg laying animals are called as oviparous, और जो viviparous होते हैं those who gives birth to the young ones as well as who feed their young ones for longer duration, maternal care वो बहुत होती है, that is those are called as viviparous। तो जो viviparous होते हैं बच्चों, viviparous particularly विविपैरस में मैं बात करूंगा मैमल्स की, क्योंकि मैमल्स में आपको फिर से दो चीजें सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग मैमल्स में देखी जा सकती है। तो मैमल्स जितने भी होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, उसमें अगर आप उन्हें कैटेगराइज कर दोगे प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स में, तो प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स कौन कौन से होते हैं, मैं आपको एक ट्रिक दूंगा यहाँ पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड दी प्राइमेट्स। तो प्राइमेट्स कौन कौन होते हैं, प्राइमेट्स आर दोज एनिमल्स विच आर you can say which resembles to human being in genetical, morphological and anatomical manner। तो कौन कौन से primates होते हैं, you can say monkeys, apes, all these animals which resemble to humans, they are called as a primates। तो जो primates होते हैं, तो primates में जो sexual reproduction होता है, वो sexual reproduction हमें एक टॉपिक दिया है ईस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो प्राइमेट्स होते हैं, प्राइमेट्स उसमें एज दे आर समवॉट डेवलप्ड इन यू कैन से इवोल्यूशन, तो उसमें जो मेथड होता है रिप्रोडक्शन का, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है, वो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं उसमें जो एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है वो होता है ईस्ट्रस साइकिल। तो ईस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल दोनों में डिफरेंस यही है कि जो नॉन प्राइमेट्स है, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक नॉन प्राइमेट्स कौन कौन होते हैं बच्चों, तो अब प्राइमेट्स में जो एनिमल्स है उसमें मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस है, उन्हें छोड़कर जितने भी एनिमल्स है लाइक काउ, शीप, रैट, बियर, डॉग, टाइगर, जितने भी एनिमल्स है नॉन प्राइमेट्स में, वो सभी एनिमल्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है और वो होता है ईस्ट्रस साइकिल। तो बच्चों ईस्ट्रस साइकिल का बाय टेक्स्ट डेफिनेशन मीनिंग ऐसा है, साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, साइक्लिक चेंजेस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। तो वो जो साइकिल होती है रिप्रोडक्शन की वो होती है ईस्ट्रस साइकिल नॉन प्राइमेट्स में। और जो प्राइमेट्स होते हैं लाइक मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस, तो उसमें जो भी इवेंट होता है वो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अगर ये दो टॉपिक को आगे लेकर हम जाते हैं तो मैमल्स में आप और दो चीजें डिफरेंशिएट कर सकते हो कि जो मैमल्स होते हैं अदर देन ईस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, यू कैन से देयर आर टू पॉसिबिलिटीज इन मैमल्स। कौन कौन सी दो पॉसिबिलिटी है, आइदर दे आर सीजनल ब्रीडर्स और दे आर कंटिन्यूअस ब्रीडर। तो what do you mean by seasonal breeders? Seasonal breeders means those animals which do have a breeding season. Breeding season का मतलब होता है they have a particular time duration during which they undergo mating and they undergo gamete formation, whatever events involved in sexual reproduction। तो सभी events एक particular duration में होते हैं, वो particular you can say in a particular year that particular span is reserved for that event of sexual reproduction, चाहे वो fertilization हो, pre fertilization, post fertilization, all those events occurs in a particular duration of the year। तो वो जो breeders होते हैं वो होते हैं seasonal breeders because they do have a season, that's why that season is called as a breeding season। और जो दूसरा इवेंट होता है वो होता है, सॉरी दूसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है कंटिन्यूअस ब्रीडर। जो कंटिन्यूअस ब्रीडर होते हैं उनकी फीमेल जो होती है they do involve menstrual cycle। तो जितनी भी females है they will undergo periodic changes, cyclic changes in called as a menstrual cycle as it is occurring in every month। That's why they become the continuous breeder because they have a possibility of having fertilization and reproduction every month। That's why they are called as a continuous breeder। तो continuous breeder and seasonal breeder, जो non primates है वो seasonal breeders होते हैं और जो continuous breeders होते हैं वो continuous breeders होते हैं। तो ये तो रहा आपका रिगार्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो टॉपिक पर हमें सबसे ज्यादा डिस्कशन करना है बच्चों, वो टॉपिक है व्हाट आर द इवेंट्स ऑकरिंग इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वो इवेंट्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। देखिए बच्चों, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है, जैसे कि मैंने आपको बहुत से लेक्चर्स के थ्रू बताए थे, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेक्चर्स और एनी काइंड ऑफ रेफरेंस, तो आपके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, चाहे वो स्टेट बुक की हो, चाहे वो एनसीईआरटी की हो। वी डू हियर प्रेफर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, सो प्लीज हैव योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर। तो पेज नंबर है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 10। तो वहाँ पे अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जितने भी एनिमल्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये 3 इवेंट्स कौन कौन से हैं, वी कैन ड्रॉ दोज इवेंट्स हियर एज वेल एज वी कैन डिस्कस इन मीनवाइल। तो बच्चों, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अगर आप प्लांट्स और एनिमल्स का particularly स्टडी करोगे, तो यू कैन डिफरेंशिएट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनटू 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स। कौन कौन से 3 इवेंट्स होते हैं? तो सबसे पहला जो इवेंट होता है, दैट इवेंट इज कॉल्ड एज अ प्री fertilization, second event is called as a fertilization, and third event is called as a post fertilization. So first type of events are called as a pre fertilization events. Pre fertilization events. Second events are termed as a fertilization, और थर्ड जो इवेंट होते हैं they are called as a post fertilization events. तो sexual reproduction can broadly be divided into these 3 topics. तो as usual we'll start with pre-fertilization events. बच्चों, इसकी डेफिनेशन हम कैसे बना सकते हैं? तो सिंपल है, इजी है। What is the pre-fertilization events in sexual reproduction? Those events which occurs before the fertilization are called as a pre-fertilization events. तो pre-fertilization events में भी कौन कौन से सब इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक पेज नंबर 10 है, तो यहाँ पे आपको मिल सकता है कि देयर आर 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन्वॉल्व्ड इन प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस और प्री फर्टिलाइजेशन पार्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वो 2 इवेंट्स होते हैं, आई एम गोइंग टू राइट इट हियर। जो फर्स्ट इवेंट है उसका नाम है गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस दैट मींस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। और जो दूसरा इवेंट है वो है ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। तो चलो डिस्कस करते हैं इन डिटेल। सबसे पहले तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस, सी द event which involve formation of gametes or the process which produces gametes is called as a gametogenesis. तो gametogenesis is the first event in pre-fertilization. तो बच्चों, gametes 2 तरह के होते हैं, as we all know. gametes के बारे में 2 चीजें आपको पता ही होनी चाहिए। कोई भी अगर किसी चीज को किसी in science, in biology, if you say that this is the gamete, तो उसके बारे में 2 important universal truth आपको पता होने चाहिए। पहला universal जो truth है, that universal truth is it must be haploid. It must be haploid. It is haploid in fact. तो haploid ही होता है। haploid मतलब जो भी इंडिविजुअल का क्रोमोसोम नंबर का सेट होता है वो हाफ होता है। इन केस ऑफ ह्यूमन एज इट इज 46 क्रोमोसोम्स आर देयर, यहाँ 23 पेयर्स होती है, तो यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ हैप्लॉइड। एंड सेकंड थिंग, it must be produced through the process of meiosis. ये meiosis के जरिए ही प्रोड्यूस होते हैं, तो ही इसे गैमेट्स बोल सकते हो आप। अगर वो माइटोसिस के जरिए प्रोड्यूस होते हैं तो आप उन्हें स्पोर्स बोल सकते हो, दो दे आर हैप्लॉइड। तो ये तो क्लियर कर लीजिए कि जितने भी गैमेट्स होते हैं, सबसे पहले तो गैमेट्स आर हैप्लॉइड। और दूसरी जरूरी बात कि गैमेट्स में 2 टाइप हो सकते हैं, एक होता है मेल गैमेट, दूसरा होता है फीमेल गैमेट। तो अगर आप अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक जाएंगे तो आपको समझ में आ सकता है कि इन केस ऑफ अलगी जो पॉइंट अभी मैंने बताया, तो उसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन उसमें आ सकता है। आई डोंट से इट इज एक्सेप्शन टू मेल एंड फीमेल, बट आई विल से गैमेट्स में भी 2 तरह की पॉसिबिलिटीज आती है बच्चों। कौन कौन सी तरह की पॉसिबिलिटीज होती है? तो गैमेट्स में 2 पॉसिबिलिटीज ऐसी होती है, एक होती है होमोगैमेटिक कंडीशन और दूसरी होती है हेटेरोगैमेटिक कंडीशन। व्हाट इज होमोगैमेटिक कंडीशन? होमोगैमेटिक कंडीशन का मतलब होता है, होमो मतलब सेम, आइसोगैमस या होमोगैमस। आइसो मतलब सेम एंड गैमस मींस गैमेट्स।
तो यहाँ पे दोनों गैमेट्स एक जैसे दिखते हैं, दे लुक्स वेरी मच अलाइक दैट यू कांट इवन डिफरेंशिएट दैट दिस वन इज मेल एंड दिस वन इज फीमेल, और डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो उसे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ होमोगैमस और हेटेरोगैमस। तो बहुत सारी जो अलगी होती है, अलगी पर्टिकुलरली ट्राई टू रिमेम्बर, ये आपको नीट में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। आपने आई थिंक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टॉपिक में इन डिटेल पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि जो अलगी होती है दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस सच गैमेट्स की जो गैमेट्स आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन यू कैन सी इट ऑन पेज नंबर 10, जो फर्स्ट डायग्राम है, दोनों गैमेट्स एक जैसे दिखते हैं। और दूसरी जरूरी बात, ये जो होमोगैमेट्स होते हैं या आइसोगैमस कंडीशन होती है, यहाँ पर ये गैमेट्स मोटाइल होते हैं। देखिए बच्चों, दोनों चीजें एक्सेप्शनल है। एक तो गैमेट्स एक जैसे नहीं होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट शुड लुक डिफरेंट, क्योंकि उन्हें डिफरेंशिएट करने के लिए उसमें डिफरेंस होना चाहिए, तो ये नहीं होता है यहाँ पे, बिकॉज दे आर होमोगैमेटिक और होमोगैमस। और दूसरी चीज जो होती है, उसमें से कोई तो भी एक मोटाइल होता है, कोई तो भी एक नॉन मोटाइल होता है। यूजुअली मेल गैमेट्स आर मोटाइल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, बट हियर इन homogametic condition both the gametes are very much alike to each other, वो बहुत से similarity दिखाते हैं, and they don't have differences। और जरूरी बात है, both of them first of all you can't differentiate which one is male which one is female, and second one they both are motile। तो हेटेरोगैमेटिक की तरफ बढ़ते हैं। हेटेरोगैमेटिक कंडीशन में यूजुअली क्यों बोलूंगा, बिकॉज इट इज नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ कि हेटेरोगैमेटिक कंडीशन में फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोनों गैमेट अलग अलग होते हैं। एक होता है मेल गैमेट, दूसरा होता है फीमेल। तो जो मेल गैमेट होता है यूजुअली इट इज स्मॉलर इन साइज एंड इट इज मोटाइल। फिर से एक बार दोहराता हूँ, मेल गैमेट्स आर यूजुअली स्मॉलर इन साइज एंड दे आर मोटाइल। ऑन द अदर हैंड फीमेल गैमेट्स आर लार्जर एंड दे आर नॉन मोटाइल। तो ये आप पक्का आपके दिमाग में बिठा लीजिए कि मेल गैमेट्स आर स्मॉलर एंड दे आर मोटाइल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल एंड दे आर कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज। तो दिस कंडीशन इज हेटेरोगैमेटिक कंडीशन। तो गैमेटोजेनेसिस इज द फर्स्ट इवेंट occurring in pre-fertilization process of formation of gamete is called as the gametogenesis। गैमेट्स में दो पॉसिबिलिटीज होती है, होमोगैमेटिक, हेटेरोगैमेटिक। होमोगैमेटिक में एज आई टोल्ड यू इन केस ऑफ अल्गी ये कंडीशन आपको मिल सकता है। अभी आगे बढ़ते हैं कि जो मेल गैमेट्स होते हैं उन्हें क्या बोला जा सकता है, फीमेल गैमेट्स को क्या। हेटेरोगैमेटिक कंडीशन में जो मेल गैमेट होता है दे आर either called as antherozoids or sperms। in case of plants they are called as antherozoids, in case of animals they are called as sperms। but in case of female, what are they called as? They are called as eggs or ovum। in case of plants they are called as egg cells or eggs, and in case of animals they are called as ovum। तो आगे बढ़ते बच्चों, आगे इसमें जो टॉपिक आता है यही गैमेटोजेनेसिस में, वो होता है सेक्सुअलिटी में थोड़ी सी कंफ्यूजिंग कुछ कंसेप्ट्स है, वो पहले क्लियर कर लेते हैं। सेक्सुअलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है गैमेटोजेनेसिस में, ये भी आपको वो टॉपिक के थ्रू समझ में आ जाएगा। तो सेक्सुअलिटी में दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। पहली चीज कौन सी, तो अगर प्लांट्स है तो सेक्सुअलिटी में दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स आते हैं या दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस आपको याद रखनी होती है। एक होती है मोनोशियस और दूसरी कंडीशन होती है डायोशियस। तो बच्चों जो मोनोशियस है वो पहले क्लियर कर लेते हैं, एंड देन आई विल टेल यू द सब्स्टिट्यूट वर्ड फॉर मोनोशियस। तो बच्चों मोनोशियस, मोनो मतलब सिंगल, शियस मतलब कंडीशन। तो ऐसी कंडीशन, द कंडीशन ऑफ सेक्सुअलिटी इन विच both the sexes are present in same plant। फिर से दोहरा देता हूँ बिकॉज इट इज टू मच कंफ्यूजिंग फॉर स्टूडेंट्स फॉर ऑल द टाइम। तो मोनोशियस का मतलब होता है बाइसेक्सुअल। मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ, जो मोनोशियस होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है एक ही प्लांट में आपको दोनों जेंडर, दोनों सेक्सेस मिल सकते हैं, मेल एज वेल एज फीमेल, बोथ आर प्रेजेंट इन सेम प्लांट। As there is a single plant, it is called as a monoecious, and both the gametes, both the genders are present in same plant, that's why it is called as a bisexual। तो बस ये कंसेप्ट को अपोजिट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा डायोशियस और यूनिसेक्सुअल।
यूनिसेक्सुअल, वी आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब किसी एक ऑर्गेनिज्म में, एक एनिमल में, प्लांट में एक ही तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे और एक ही तरह का जेंडर वो दिखाएगा, तो उसे बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। एंड यूनिसेक्सुअल इज आल्सो कॉल्ड एज अ डायोशियस। ये आई हैव सीन थ्रू माय टीचिंग एक्सपीरियंस, तो बहुत से बच्चों में ये हमेशा कंफ्यूजन का पार्ट रहता है। अगर मोनोशियस याद रहता है तो बाइसेक्सुअल में कंफ्यूजन हो जाता है, अगर डायोशियस याद रहता है तो यूनिसेक्सुअल में कंफ्यूजन हो जाता है। आई होप यू हैव गॉट दिस कि मोनोशियस और बाइसेक्सुअल ये दोनों एक होते हैं, और डायोशियस एंड यूनिसेक्सुअल ये दोनों एक होते हैं। तो ये था अबाउट सेक्सुअलिटी इन केस ऑफ गैमेट्स। उसके बाद अगर हम प्लांट्स की तरफ बढ़ते हैं, ये था एनिमल्स के बारे में। अगर हम प्लांट्स की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पे जो कंडीशन आती है वो कंडीशन आती है, यही कंडीशन को अगर मैं एल्गी में डिस्कस करता हूँ, इन केस ऑफ एल्गी, तो मोनोशियस तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। मोनोशियस का मतलब होता है दोनों जेंडर्स, दोनों सेक्सेस अगर एक ही प्लांट में मिलती है तो हम उसे बोलते हैं मोनोशियस या बाइसेक्सुअल। तो इन केस ऑफ फंगी और अल्गी ये कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मैं सिर्फ इसे बोलूंगा होमोथैलस, या हम उसे बोल सकते हैं होमोथैलिक इन केस ऑफ एल्गी एंड इन केस ऑफ फंगी। यू कैन से इन लोअर प्लांट्स, ये आपने हायर प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया। इन केस ऑफ लोअर प्लांट्स लाइक एल्गी एंड फंगी कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक। तो होमोथैलिक, थैलिक या थैलस, इसका मीनिंग तो आपको शायद पता ही होगा कि थैलॉइड मतलब एक स्ट्रक्चर होता है, बॉडी होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर एक ही फिलामेंट में, एक ही स्ट्रक्चर में अगर आपको दोनों जेंडर्स मिलते हैं, दोनों गैमेट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, तो आप उसे बोलते हो होमोथैलिक। और अगर दो अलग अलग थैलस पर, दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स पर आपको मेल एंड फीमेल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मिलते हैं, तो आप उसे बोलते हो हेटेरोथैलिक। तो सेक्सुअलिटी में प्लांट्स के बारे में हमने डिस्कस किया, हायर प्लांट्स के बारे में बाइसेक्सुअल, और बाइसेक्सुअल को ही हमने कहा मोनोशियस, और यूनिसेक्सुअल एंड डायोशियस। लोअर प्लांट्स एज लाइक एल्गी एंड फंगी वी हैव स्टडीड होमोथैलिक कंडीशन एंड हेटेरोथैलिक कंडीशन। आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ प्लांट्स, इफ वी डिस्कस इन फ्लावर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम फ्लावर पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में डिस्कस करते हैं तो उसमें कंडीशन थोड़ी सी अलग है। कंडीशन ऐसी होती है प्लांट्स में, आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के थ्रू ये दो कंसेप्ट हम लेते हैं। एक होता है स्टैमिनेट फ्लावर, दूसरा होता है पिस्टिलेट फ्लावर। स्टैमिनेट एंड सेकेंड वन इज पिस्टिलेट। तो स्टैमिनेट फ्लावर का मतलब क्या होता है बच्चों? स्टैमिनेट फ्लावर एक्चुअली इट्स रिगार्डिंग फ्लावर और पार्ट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो सेक्सुअलिटी में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन केस ऑफ प्लांट। तो एक कंडीशन आती है, मैंने बोला कि कुछ कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है वो क्लियर कर देते हैं। स्टैमिनेट फ्लावर का मतलब होता है, स्टैमिनेट का मतलब होता है, स्टैमेन इज द यू कैन से यूनिट ऑफ एंड्रोशियम, तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अगर किसी फ्लावर में सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दिखता है, सिर्फ स्टैमेन या सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट होता है, दे आर प्रोड्यूसिंग ओनली मेल गैमेट्स, दैट मीन पोलन ग्रेन्स, तो वो फ्लावर को आप बोलेंगे स्टैमिनेट फ्लावर, करेक्ट। और स्टैमिनेट फ्लावर जो प्लांट पर प्रेजेंट होगा वो प्लांट को आप बोलेंगे स्टैमिनेट प्लांट। तो वही कंसेप्ट को आप अपोजिट कर दीजिए इन केस ऑफ पिस्टिलेट। पिस्टिल इज द यूनिट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जो फ्लावर सिर्फ पिस्टिल के प्रेजेंस, पिस्टिल का ही प्रेजेंस रखता है, उसे हम बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर, एंड द प्लांट इज कॉल्ड एज अ पिस्टिलेट प्लांट। तो सेक्सुअलिटी इन केस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, वी आर डिस्कसिंग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। गैमेटोजेनेसिस हो गया, गैमेटोजेनेसिस में हमने टाइप्स ऑफ गैमेट्स देखा, देन सेक्सुअलिटी के बारे में डिस्कशन किया। नाउ वी डिस्कस अबाउट द एनिमल्स। तो कुछ एनिमल्स में और कुछ प्लांट्स में एक ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पे आप ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो कि दिस प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल, ये एनिमल मेल है या फीमेल है। इन केस ऑफ प्लांट वी ऑलरेडी हैव डिस्कस कि जो बाइसेक्सुअल होते हैं, जो मोनोशियस होते हैं, यहाँ पे दोनों जेंडर या दोनों जो गैमेट प्रोड्यूस करने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक ही प्लांट में होते हैं। इफ सेम कंडीशन विल बी देयर इन एनिमल्स, तो उसे क्या बोल सकते हो बच्चों? आई होप यू हैव गॉट द रीजन। यहाँ पे हम डायरेक्ट लाइव इंटरेक्शन नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई आई कांट हियर यू, बट आई
आई एम डैम श्योर कि आपको पता चल चुका होगा कि ये कंडीशन को हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। वेरी गुड। तो हर्माफ्रोडाइट का जो मीनिंग होता है वो होता है if both the genders, both the sexes are present in same animal, then it is called as a hermaphrodite। तो hermaphrodite तक हमने गैमेटोजेनेसिस को डिस्कशन किया। आगे बढ़ते हैं सेकेंड इवेंट जो होता है इसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, वो होता है ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। तो ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स में सबसे पहले तो गैमेट प्रोड्यूस करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट होना जरूरी होता है, और वो होता है सेल डिवीजन। तो गैमेटोजेनेसिस तो हमने पढ़ लिया, गैमेटोजेनेसिस में टाइप्स पढ़े, उसके बाद सेक्सुअलिटी पढ़ी। अभी एक छोटा सा टॉपिक में डिस्कस करना चाहता हूँ, और वो है कि सेल डिवीजन का प्रोसेस जो होता है, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स के पहले वो चीज पता होना सबसे जरूरी है। तो कौन सी बच्चों? तो देखिए बहुत सारे लोअर प्लांट जो होते हैं, लोअर प्लांट्स, तो लोअर प्लांट्स आप किसे बोल सकते हो? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में अगर आप मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमालिया, इसमें जो पहले 2-3 आते हैं वो लोअर में आते हैं। अगर आप प्लांट्स के सेक्शन में जाओगे तो आपको थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा ये आते हैं लोअर में, और शायद टेरिडोफाइटा नहीं ले सकते हम, लेकिन टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म ये थोड़े से हायर साइड्स में आते हैं। तो जो यूजुअली जो इवेंट जो सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है, जो गैमेट प्रोड्यूस करता है, वो प्रोसेस जो होता है, वो प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। नाउ द कंडीशन इज गैमेट्स तो हैप्लॉइड ही होते हैं। अगर गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं तो हैप्लॉइड गैमेट्स हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस कर सकती है क्या? ये एक मेरा सवाल है आपसे। टिल द एंड ऑफ द लेक्चर आप उस पर सोचिए, या मैं ऐसे बात करूंगा, ऐसे बोलूंगा आपको कि आई विल गिव यू होमवर्क कि हैप्लॉइड सेल हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस कर सकती है क्या, है या नहीं? ये इसका आंसर आपको मुझे रिवर्ट करना है, रिप्लाई करना है। और दूसरी बात, अगर कोई सेल डिप्लॉयड होती है तो वो हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस कर सकती है? डेफिनेटली इट विल प्रोड्यूस द गैमेट्स। अगर सेल डिप्लॉयड होती है तो उसमें मियोसिस होगा, और मियोसिस के थ्रू वो गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगी। वो गैमेट्स होंगे हैप्लॉइड, 4 गैमेट्स होते हैं, दैट्स व्हाई दैट प्रोसेस इज अ मियोसिस। पर अगर मदर सेल होती है वो अगर खुद ही हैप्लॉइड हो, तो उसे अगर हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस करना है तो वो कौन सा वे चूज करेगी? तो वो चूज करेगी माइटोसिस। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो गैमेट प्रोड्यूस करने वाली जो प्रोसेस होती है सेल डिवीजन की, वो अगर खुद मदर सेल ही हैप्लॉइड हो तो माइटोटिकली गैमेट प्रोड्यूस करती है, और अगर जो मदर सेल है वो अगर डिप्लॉइड होती है तो वो मियोटिकली गैमेट प्रोड्यूस करती है। तो जो हैप्लॉइड मदर सेल होती है वो कौन कौन से एनिमल में? एज आई टोल्ड यू इन लोअर प्लांट्स, तो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक फंगी होती है, आप फंगाई भी बोल सकते हो, देन एल्गी एंड देन ब्रायोफाइटा। ये जो 3 कैटेगरी है बच्चों, यहाँ पे खुद मदर सेल ही हैप्लॉइड होती है और वो माइटोटिकली गैमेट प्रोड्यूस करती है। और जो हायर एनिमल्स होते हैं, हायर प्लांट्स होते हैं, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, वहाँ पे जो मदर सेल होती है, मतलब गैमेट प्रोड्यूसिंग जो स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो मेल गैमेटोफाइट हो या फीमेल गैमेटोफाइट हो, व्हाटएवर इट मे बी, लेकिन वो डिप्लॉयड होता है और इट अंडरगो थ्रू द मियोसिस। तो आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट इवेंट है अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट बुक, वो है गैमेट ट्रांसफर। तो बच्चों गैमेट ट्रांसफर में सबसे पहले तो आपको जो गैमेट्स होते हैं वो एक बार फिर से क्लियर कर लेने हैं कि गैमेट्स में हमें अगर डिस्कशन आगे करना है गैमेट ट्रांसफर में, तो एक चीज हमें एट द बैक ऑफ द माइंड क्लियर करनी होगी कि जो मेल गैमेट्स होते हैं यूजुअली अकॉर्डिंग टू साइज, मेल गैमेट्स आर स्मॉलर इन साइज एंड दे आर मोटाइल, एंड इन केस ऑफ फीमेल गैमेट्स दे आर कंपैरेटिवली बिगर इन साइज बट दे आर नॉन मोटाइल। तो ट्रांसफर अगर करना है, ठीक से सुनिए, अगर ट्रांसफर करना है तो किसका ट्रांसफर करोगे आप? मेल गैमेट्स का या फीमेल गैमेट्स का? क्वाइट ऑब्वियस है बच्चों, आप ट्रांसफर करोगे मेल गैमेट्स का। तो अगर मेल गैमेट ट्रांसफर करने हैं और अगर वो खुद मोटाइल है तो इट बिकम क्वाइट इजियर, बट इफ इट इज नॉन मोटाइल, इफ मेल गैमेट्स इटसेल्फ आर नॉन मोटाइल,
and they are smaller in size by default, and you want to transfer them. If you want to transfer them being non-motile, then you need a very special arrangement for that, very special system for that. We'll see it in next topic. तो ये तो क्लियर कर लीजिए कि एट द बैक ऑफ द माइंड गैमेट ट्रांसफर में आपको क्या पता होना चाहिए कि अगर मेल गैमेट होते हैं तो वो स्मॉलर इन साइज और मोटाइल होते हैं, फीमेल गैमेट लार्जर इन साइज और नॉन मोटाइल होते हैं। पर अगर वो नॉन मोटाइल है मेल गैमेट्स, तो उसे ट्रांसफर करने के लिए आपको एक स्पेशल अरेंजमेंट की जरूरत आपको लगने वाली है। तो इन केस ऑफ एल्गी एंड फंगी हमने ऑलरेडी गैमेट के टॉपिक में पढ़ा कि जो बोथ द गैमेट्स होते हैं वो होमोगैमस होते हैं, यू कांट डिफरेंशिएट देम एज अ मेल एंड फीमेल, तो दोनों के दोनों मोटाइल होते हैं। और सबसे जरूरी बात एल्गी और फंगी में कि दे नीड अ मीडियम फॉर देयर फर्टिलाइजेशन, तो उन्हें फ्यूज होने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो इट बिकम इजियर बिकॉज बोथ द गैमेट्स आर मोटाइल, सो दे क्वाइट इजीली गॉट मिक्स्ड विद ईच अदर। पर जो ब्रायोफाइट्स होते हैं बच्चों, ब्रायोफाइट्स, पर्टिकुलरली ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के बारे में बोलूंगा। तो ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में दे नीड वाटर एज अ मीडियम फॉर देयर ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। तो ये एक कंडीशन ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स में आपको याद रखनी होगी। आप क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट के जितने भी डिविजन्स है वो डिविजन्स को आप एक बार फिर से याद कर लो। सबसे पहले आता है थैलोफाइटा, या आप उसे एल्गी बोलते हो। तो एल्गी में जो ट्रांसफर ऑफ गैमेट होता है वो ट्रांसफर ऑफ गैमेट क्वाइट इजी होता है, क्योंकि वो दोनों के दोनों गैमेट मेल और फीमेल गैमेट दोनों मोटाइल होते हैं। वी कॉल्ड देम ज़ूस्पोर्स। आगे बढ़ते हैं, दूसरा डिवीजन कौन सा होता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट में, तो वो होता है ब्रायोफाइटा, नेक्स्ट होता है टेरिडोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा ये दोनों डिविजन्स में आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोफिली नाम की कंडीशन होती है बच्चों। ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स थ्रू द एजेंसी ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिली। तो क्वाइट ऑब्वियस है, अगर वाटर इज द कैरियर तो चाहे मेल गैमेट मोटाइल हो या ना हो, इट डजंट मैटर बिकॉज द एजेंसी इज मोटाइल। तो डेफिनेटली यहाँ पे मेल गैमेट्स नॉन मोटाइल होते होंगे, दैट्स व्हाई इट नीड एजेंसी। तो ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स फ्रॉम पार्ट ऑफ प्रोडक्शन टिल द स्टिग्मा, मतलब जहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं वहां से लेकर तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा उसके रिसेप्टाइल स्ट्रक्चर तक उसका ट्रांसफर अगर वाटर के थ्रू होता है तो उसे हम बोलते हो हाइड्रोफिली। और कौन कौन से डिविजन्स में आपको हाइड्रोफिली मिल सकती है, तो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी जो हायर प्लांट्स है, हायर प्लांट्स में सिर्फ दो ही डिविजन अभी बचती है, एक है जिम्नोस्पर्म और दूसरा है एंजियोस्पर्म। तो दोनों डिविजन्स में बीइंग हायर, ये जो प्लांट्स होते हैं ये हायर होते हैं, तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट भी होता है। तो यहाँ पे पॉलिनेशन होता है बच्चों, और पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। और जो पॉलिनेशन है ये टॉपिक आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म इसमें इन डिटेल आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, आई विल जस्ट से कि आपको पॉलिनेशन पढ़ना होगा, पॉलिनेशन पता होना चाहिए ट्रांसफर ऑफ गैमेट में। तो ट्रांसफर ऑफ गैमेट में पॉलिनेशन में कौन से गैमेट्स ट्रांसफर होते हैं, pollen grains are male gametes, that's why it is called as a pollination. So transfer of male gamete, that means pollen grain from anther to stigma, it's called as the pollination. यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट में रिकॉल कर लेते हैं कि पॉलिनेशन में दो पॉसिबिलिटीज होती है, एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरी होती है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में आप फिर से दो कंडीशंस रख सकते हो। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है बच्चों, अगर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर हो तो भी उसे सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। और अगर एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट होता है तो भी उसे सेल्फ पॉलिनेशन बोल सकते हो। क्रॉस पॉलिनेशन में ऐसी कोई कंफ्यूजिंग कंडीशन नहीं है, सिर्फ सिंपल कंडीशन है दोनों फ्लावर्स अलग अलग प्लांट से होने चाहिए। तो क्रॉस पॉलिनेशन मींस ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑन टू डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट कॉल्ड एज अ क्रॉस पॉलिनेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका प्री फर्टिलाइजेशन जो इवेंट है, उसमें दो सब इवेंट्स इन्वॉल्व थे, एक था गैमेटोजेनेसिस, दूसरा था ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो इवेंट है उसका नाम है फर्टिलाइजेशन।